Good morning, students. Today we will learn new concept from the chapter unit and one dimensions, such as equation of motion and their applications. So first kinematic equation, second kinematic equation, third kinematic equations. Here first equation of motion or first kinematic equation, that is v equals to u plus at. Second equation of motion, that is s equals to ut plus half at square. Third equation of motion, that is a v square equals to u square plus 2as. And sometime you find the displacement equation x equals to x naught plus ut plus half at square. So students, consider an object moving with constant acceleration along positive direction of x axis. बच्चों यहाँ कंसीडर करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूवमेंट करता है. So yes, you have to observe where this is 0 means origin position, and 0 is the actual position of the object. This 0 is origin position, and another 0, this one, is the position of initial position of the object. Here the distance between O and O dash is x naught, and here u is the initial velocity. So in 0 second the position of the object in x naught, and in t time the position of the object is x. This time its velocity is v, that is final velocity in t time. So physical quantities are there. Number 1, x naught, position of the object at instant t equals to 0. X, position of the object at instant t. U, velocity of object at instant t equals to 0. V, velocity of object at instant t. And x minus x naught is the displacement. Okay, bachcho? So we are deriving first equation of motion. This is a very easiest question. बच्चों, जब हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम. So change in velocity with time or change in velocity upon time taken, other language you use, rate of change of velocity. So change in velocity means final velocity minus initial velocity. Time taken means t minus 0, obviously t. After the cross multiplication you find at equals to v minus u. So this is v equals to u plus at, first equation of motion. Okay bachcho? Now let us study about the second equation motion. You know the concept of the average velocity. Average velocity of the object in time interval 0 to t is given by VAV equals to displacement upon time. अब displacement बच्चों x minus x naught upon t. So x minus x naught equals to VAV into t. ध्यान रखना बच्चों, ये x minus x naught is a displacement only. And another definition of the average velocity, you know, initial velocity plus final velocity divided by 2. So VAV equals to u plus v divided by 2. So here you notice here x minus x0 equals to VAV into t, and VAV equals to u plus v upon 2. So in place of the VAV I write now u plus v upon 2. So now I find some changes. The new equation x minus x naught equals to u plus v upon 2 into t. ओके बच्चों, अब हम इसमें v की वैल्यू u plus at फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा और ये होगा x minus x naught equals to u plus inside of the bracket u plus at, that is the actual value of the v whole into t divided by 2. अब u plus u 2u, very simple, plus at whole into t divided by 2 after applied the distribution law and multiply by t. So distribution law लगाने के बाद 2u into t divided by 2
plus 80 into t divided by 2. 80 into t means 80 square. 2 cancel. So x minus x naught equals to ut plus half 80 square. This is displacement equation. अगर x naught को ट्रांसफर कर दो तो इक्वेशन आपको मिल जाएगा x equals to x naught plus ut plus half 80 square. But you know x minus x naught is a displacement or distance because this body move in particular one axis. आपको पता है कि अगर कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं. सो फाइनल यू फाइंड द रिजल्ट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को बताता है, इसलिए इस इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी बोलते हैं. आइए देखते हैं थर्ड इक्वेशन. वेलोसिटी एट अ सर्टेन पोजीशन v इक्वल्स टू u प्लस 80 ऑलरेडी यू नो. अच्छा बच्चों, यहां पर एक चीज और ध्यान देना, ये जो इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस 80, दिस इज द रिलेशन बिटवीन four physical quantity: initial velocity, final velocity, acceleration, time, and all terms present only the velocity. अगर आप v को देखें तो final velocity, u initial velocity, at change in velocity. It means this equation is a velocity equation. So therefore t equals to v minus u upon a. Substitute the value of t in this equation. s equals to vav into t. बच्चों आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. अब टाइम की जगह t की जगह हम v माइनस u अपॉन a रख देते हैं. 2a का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 2a का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हो गया 2as. यहां ये बताने की बात नहीं है कि vav इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन 2 होता है, आपको पहले से पता है. सो 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और v square equals to u square plus 2as. This is third equation of motion. Sometime you find, you know, the value of initial velocity, final velocity and acceleration, so you solve the displacement with the help of these equations. Okay बच्चों, ये थे जनरल इक्वेशन जनरल फॉर्म से, लेकिन इस साल आपको कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है. क्लास 9th में ऑलरेडी आपने these इक्वेशंस को आपने पढ़ लिया था, तो इसमें नया कुछ नहीं था, बस एक रिवाइज बस था. आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय डिफरेंशियल मेथड और कैलकुलस मेथड. ये न्यू वर्जन है. यू नो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना शुरू करते हैं. ऑलरेडी यू नो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज a इक्वल्स टू dv अपॉन dt. बच्चों इसे आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोलते हो, और ये एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट भी है, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फार्मूला भी है a इक्वल्स टू dv अपॉन dt. तो आपको इन 3-4 चीजों में से कुछ भी चीज को ध्यान रखना है, पर चारों बातें ध्यान रखिए. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है बच्चों, dt का मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो a इंटू डी टी इक्वल्स टू dv आया. अब लिमिट की बात करते हैं. सपोज टाइम इज 0 मींस इनिशियल टाइम, so velocity of the object is initial, that is a symbolic representation of the initial velocity is u. And when time is t means maximum time, so velocity is final velocity symbolic representation is small v. आप क्या करते हैं, now integrating this equation with the above limit. above limit मतलब इनिशियल एंड फाइनल लिमिट. a कांस्टेंट है, लेफ्ट साइड जब हमने इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया उसके पहले a लिख दिया बिकॉज a इज अ कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होना. राइट साइड देखिए इंटीग्रेशन ऑफ t भी. अब लेफ्ट साइड और राइट साइड का अगर इंटीग्रेशन देखेंगे तो लोअर लिमिट 0, लोअर लिमिट u, मतलब व्हेन टाइम इज 0 वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनिशियल वेलोसिटी. When time is maximum, the velocity of object is maximum velocity. So that you notice here 0 to t dt equals to integration of u to v dv. अब बच्चों आपको एक इंटीग्रेशन पता है, फार्मूला पता है, x to the power n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx equals to होता है x to the power n plus 1, x to the power n plus 1
डिवाइड बाई n+1। तो बच्चों यहां देखो, फर्स्ट लिखा हुआ t टू द पावर 0 dt, बिकॉज t टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। तो t टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन किया तो t टू द पावर 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1, तो t आ गया। राइट साइड देखिए, v टू द पावर 0 + 1, तो v आ गया। लिमिट रख दिया। लिमिट ध्यान रखते समय ये ध्यान रखते हैं कि जो वेरिएबल आया है वो अपर और लोअर लिमिट के टर्म में वेरी करता है। सो a इंटू अपर लिमिट माइनस t माइनस लोअर लिमिट ऑफ द t इज 0, तो a इंटू t माइनस 0। बट राइट साइड आप देखिए, v अपर लिमिट कितनी है, v है, और लोअर लिमिट कितना है, u। सो दिस इज v माइनस u। So a into t minus 0 equals to v minus u. That's why at equals to v minus u. U का ट्रांसफर किया, so that u plus at equals to v. This is the first equation of motion and very easy बच्चों. I think you understand. Okay. Now we start learning for second equation. Second equation of motion को displacement equation भी बोलते हैं, distance equation भी बोलते हैं, because all term of this equation only define the displacement or distance only. So velocity is defined as v equals to dx upon dt. इसको भी आप जानते हो, this is the first order of the derivative of position with respect to time. This is v equals to dx upon dt. Another name of this one is instantaneous velocity. After cross multiplication you find dx equals to v into dt. देखो बच्चों, मैंने dt का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर लिमिट प्रोसेस किया। जब टाइम 0 होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 0। When time is t, distance traveled by the body is s. S क्या है? Total distance. Now integrating equation number 1 within above limits. So simple सा integration का फॉर्मूला लगाया, 0 to s dx equals to 0 to t v dt. राइट साइड में हमने t 0 to t v dt इसलिए लिखा है क्योंकि राइट साइड में जो इंटीग्रेशन होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। अब आगे देखो, जो वैल्यू v की है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at, तो v की जगह हमने लिख दिया u प्लस at। सो 0 to t u प्लस at इंटू dt हो गया। ठीक है बच्चों, अब डिस्ट्रीब्यूशन लगाया तो u इंटू डी टी प्लस at इंटू डी टी हुआ, और लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन लगाया तो मैंने इसको x को इंटीग्रेट कर दिया dx को, तो x आ गया 0 to s, लिमिट आ गई, और राइट साइड u इंटू डी टी। फिर से देखो बच्चों, इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होना है तो u कांस्टेंट है, तो हमने u को बाहर कर लिया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t dt प्लस a कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई a कॉमन एंड 0 टू t t dt। अब की बार बच्चों ध्यान रखना, t का इंटीग्रेशन होना है। लेफ्ट साइड अपर लिमिट s, लोअर लिमिट 0, सो s माइनस 0। राइट साइड फर्स्ट टर्म u इंटू t प्लस a। t का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, t स्क्वायर डिवाइड बाई 2। हमने लिमिट रखने से पहले इंटीग्रेट कर दिया, आप लिमिट रख देंगे तो s इक्वल्स टू u इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब t माइनस 0 प्लस a अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर, मीन्स अपर लिमिट का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द अपर लिमिट t स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द लोअर लिमिट 0 स्क्वायर। सो एवरीवन नो 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, so that s equals to ut plus half at square. This is the second equation of motion. Again I say, everyone know about that, this is डिस्टेंस इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाई द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। ध्यान रखना बच्चों, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व किया था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव किया था कैलकुलस मेथड से, तो केवल एक्सेलरेशन डिफाइन किया था। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब किया तो हमने उसमें वेलोसिटी डिफाइन किया था, लेकिन इसमें हम दोनों के कॉन्सेप्ट को लेके चलते। आपको पता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv अपॉन dt एंड वेलोसिटी इक्वल्स टू dx अपॉन dt। सो a इक्वल्स टू dv अपॉन dt इनटू dx अपॉन dx, हमने इसमें dx अपॉन dx का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब देखो नेक्स्ट में क्या किया, dt और dx को इंटरचेंज कर दिया, dt और dx को, नीचे देखिए नीचे dt और dx को इंटरचेंज कर दिया, तो हमें मिल गया dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। लेकिन ऊपर लिखा हुआ v इक्वल्स टू dx अपॉन dt, तो अब जहां dx अपॉन dt लिखा है, dx अपॉन dt लिखा है, उसकी जगह हमने v रख दिया,
ठीक है बच्चों, जब v रख दिया तो ये इक्वेशन हो गया a इक्वल टू वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब एकदम ये सरल हो गया, इजी हो गया, कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो a इंटू डी एक्स इक्वल टू वी इंटू डी वी। फिर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, व्हेन x इज 0 velocity is u, that is initial velocity. When x is s means maximum displacement, velocity is also final velocity means v। ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, आपको पता ही है। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन अबव लिमिट्स। बच्चों देखो, लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इसलिए लिमिट 0 टू s हुआ। राइट साइड में वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो u टू v हुआ। अब बच्चों मैंने यहाँ a को पहले से कॉमन नहीं किया, क्योंकि आपको एक और दो बार आपने इंटीग्रेशन इस तरह किया है। dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, a कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, और इसका लिमिट 0 टू s हो गया। राइट साइड देखिए, v का इंटीग्रेशन हुआ v स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट u टू v। अब 1 अपॉन 2 हमने बाहर कर लिया बिकॉज 2 इज अ कांस्टेंट, एंड स्क्वायर ऑफ द अपर लिमिट माइनस स्क्वायर ऑफ द लोअर लिमिट। स्क्वायर ऑफ द अपर लिमिट मींस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सो आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2a into x upper limit s minus x lower limit means 0 means s minus 0 equals to v square minus c square. So this is the v 2as equals to v square minus c square. This is third equation of motions. So these are the very easy concept here whenever you solve it.